students, welcome to the course of IC engine and compressor. Today we are going to learn about very interesting topic known as four-stroke engine, and afterward we will go through our next lecture in which we will study two-stroke engine and then the comparison between four-stroke and two-stroke engine. But before going through the topic, I wish to repeat our lesson that we already learned in previous lecture. In previous lecture, we go through the different nomenclature of engines, different terms used in engines. वहाँ हमने क्या क्या देखा था? nomenclature में piston, cylinder, cylinder blocks, then cutting pin, crank pin. These are the engine nomenclature, and after that we go through the different terms used in engine, that is clearance volume, swept volume, compression ratio, clearance ratio, these are the topics that we already know that. Now we are going to our today's topic, that is four-stroke engine. Today we are going to study about four-stroke, especially SI engine, SI known as spark ignited engine, four-stroke or four-stroke SI engine, four-stroke SI engine. Before going through this topic, I want to discuss some historical background of the engine. The credit for inventing the spark ignition engine goes to Nicholas A. Otto at the time of 1876. From the name of the scientist, the SI engine is also known as Otto engine or Otto cycle engine. Afterward, the compression ignition engine was invented by Rudolf Diesel, and after the name of Rudolf Diesel, the compression ignition engine is also known as diesel engine or diesel engine cycle. Now, 1876 में ऑटो इंजन का आविष्कार हुआ था, इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट निकोलस ए ऑटो, निकोलस ए ऑटो. एंड आफ्टरवर्ड डीजल इंजन का आविष्कार हुआ था 1892 में. 1892 में डीजल इंजन का आविष्कार हुआ था और उन्होंने नेम ऑफ साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल. रुडोल्फ डीजल. These are the scientists that gives us the Otto engine
known as Otto cycle and the diesel engine known as diesel cycle. Now come to the main part, that is our today topic, four-stroke SI engine. Our four-stroke spark ignited engine. It clear from name that SI spark ignited means we have to give some spark to our charge. Charge is popularly known as mixture of air and fuel. Here, in the case of SI engine, our fuel is petrol. So, the mixture of air and petrol is ignited by with the help of spark. With the help of spark. Now, come to the point. In a four-stroke engine, the cycle of operation is completed in four-stroke. As the name clear from our topic, it is a four-stroke engine. So obviously, the cycle is completed in the four-stroke and of the piston or two revolution of the crankshaft. Either four-stroke, sorry, either nine. Both are in parallel way. Four-stroke in completed in four-stroke or in two revolution of crankshaft. We already seen in our yesterday lecture. It is our piston semi arrangement, crank rod means where the four stroke will be occurred, and in the time of four stroke our crank will move two revolution, and in every stroke the crank will move 180 degree. क्रैंक क्या होगा 180 डिग्री मूव करेगा मींस इन द ओवरऑल फुल स्ट्रोक द क्रैंक विल मूव 720 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से फॉर एग्जांपल इट इज एट टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर पे ये होगा ड्यूरिंग द फोर स्ट्रोक देयर आर 5 इवेंट टू बी कंप्लीटेड फोर स्ट्रोक जब होगा इसके दरमियान 5 अलग अलग स्टेप होंगे कौन कौन स्टेप होंगे सक्शन वी विल डिस्कस इन विथ डायग्राम लेटर फर्स्ट सक्शन देन कंप्रेशन देन कंबशन एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट कंप्रेशन suction compression combustion expansion and stroke. These are the 5 events that occur during our four stroke. 5 event अभी डायग्राम के साथ हम इसको अच्छे से समझेंगे पहला सक्शन है these are the event occur during the full stroke suction compression third combustion fourth expansion with exhaust. Expansion stroke is also known as power stroke. In this stroke, we got the power from our engine. Compression and combustion. Compression and combustion combinedly occur in same stroke, that is popularly known as compression stroke. These are the 5 events during four stroke. Next, quite interesting point.
which is each stroke consists of 180-degree crankshaft rotation. As we already discussed, each stroke consists of 180-degree crankshaft rotation, and hence a 4-stroke cycle is completed through 720 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। यानी अगर 4 इंटू 180 करेंगे, 4 यानी 4 स्ट्रोक है हमारे, और 180 डिग्री हर स्ट्रोक में, तो ये हम लोग को 720 डिग्री रोटेशन देगा। किसका? क्रैंक शाफ्ट का। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का 720 डिग्री रोटेशन देगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 इवेंट देखें हम लोग, 5 इवेंट के बाद हम देखते हैं 4 स्ट्रोक कौन कौन से, जिसके हम नाम कब से दिए जा रहे हैं कि 4 स्ट्रोक होते हैं, लेकिन 4 स्ट्रोक है कौन कौन से? 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी में से है सक्शन, सेकेंड कंप्रेशन, थर्ड एक्सपेंशन, एंड फोर्थ एग्जॉस्ट। These are our 4 स्ट्रोक। और ये चारों स्ट्रोक हम लोग को डीजल और एसआई दोनों इंजन में मिलेंगे। हाँ, इनके प्रोसेस अलग अलग होंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चारों स्ट्रोक हम लोग को डीजल एस एसआई इंजन में मिलेंगे। डायग्राम के साथ आते हैं, तो डायग्राम देखते हैं। और ये स्ट्रोक डायग्राम के साथ 1 बाय 1 देखेंगे और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। This is our first stroke known as suction stroke. Second, compression. ये क्या है? सेकेंड कंप्रेशन। Suction, compression, expansion. And exhaust.
exhaust stroke. These are the four stroke. I want to draw the PV diagram of the SI engine in parallel way so that we are able to know the clear picture of what is happening in each stroke. These are the four stroke of SI engine. फर्स्ट इज सक्शन स्ट्रोक. ठीक है, सक्शन स्ट्रोक समझते हैं क्या होता है. सक्शन स्ट्रोक में जो हमारा इंजन है वो पहले टीडीसी पे होता है, टॉप डेड सेंटर पे. टॉप डेड सेंटर पे होता है. तो हमारा जो इनलेट वाल्व है, ये जो ओपन वाल्व है इसको थोड़ा नीचे बनाया गया है, और ये आउटलेट वाल्व है जो क्लोज वाल्व है. इनिशियली इनलेट वाल्व जो होता है वो ओपन होता है. ठीक है, तो इनलेट वाल्व क्या करता है, सक करता है. क्या सक करता है, द चार्ज पॉपुलरली नोन एज द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर. तो पेट्रोल एंड एयर के मिक्सचर को सक करता है. और सक कैसे करता है, जब हमारा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जब हमारा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को नीचे लाएगा. ठीक है, ये क्या कर सक कर रहा है. सक करते करते कहाँ आ गया, बीडीसी पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे होंगे आप लोग 0 to 1. ये 0 to 1 आप लोग क्या कर रहा है, यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक में ये सक कर रहा है. 0 to 1 यहाँ पे सक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब सक्शन के बाद क्या होता है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको कंप्रेस किया जाता है. ठीक है, तो कंप्रेशन के लिए अगेन अब ये कहाँ पहुंच गया था, सक्शन में बीडीसी पे. कहाँ पहुंच गया, बीडीसी पे. अब कंप्रेसिव स्ट्रोक में क्या होगा, ये बीडीसी में हम लोग इसको पिस्टन अब अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा और कहाँ तक जाएगा, टॉप डेड सेंटर तक. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में कि जब हम लोग 0 to 1 पहुंच गए, हम लोग कहाँ जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे. ठीक है, 1 से 2 में जाने के लिए यहाँ पे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है. लेकिन बिफोर गोइंग टू कंप्रेसिव स्ट्रोक बोथ वाल्व इज क्लोज. यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद है. अब बंद है तो क्या कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर, अभी स्पार्क प्लग का रोल नहीं आया है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है. धीरे-धीरे कंप्रेशन हम लोग कर रहे हैं, और कंप्रेस होते होते एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ पहुंच गया, टीडीसी पे. हम लोग यहाँ देख रहे हैं टीडीसी के बाद भी हम लोग एक क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर पढ़े थे, क्लियरेंस वॉल्यूम तक वो पहुंच गया कंप्रेशन होते होते. एक कंप्रेशन तो कहाँ पहुंच गया, क्लियरेंस वॉल्यूम. ये वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम में, यानी हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर कहाँ पहुंच गया, इस क्लियरेंस वॉल्यूम में, इन द अपर पोर्शन ऑफ टीडीसी, टॉप डेड सेंटर. जैसे ही ये क्लियरेंस वॉल्यूम पहुंचा, स्पार्क इग्नाइट हो गया. जैसे हम लोग हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी पहुंचा, स्पार्क इग्नाइट हो गया, और फिर यहाँ पे कंबशन स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम प्रोसेस 2 से 3, 2 से 3 तक में, 2 से 3 तक में यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यहाँ पे जब टीडीसी पे तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं. हीट एडिशन यहाँ पे, और हीट एडिशन कैसे हो रहा है,
विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की सहायता से हीट एडिशन हो रहा है। स्पार्क प्लग की सहायता से हम हीट एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 to 3 स्टेप यहाँ पे दिख रहा है। अब कंप्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया। कंप्रेशन के बाद कंबसन, कंबसन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। कंप्रेशन के साथ साथ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कंबसन भी हो रहा है, यानी इस स्टेप में कंप्रेशन है तो लेस कंबसन भी होता है। देन फ्रॉम कंप्रेशन स्टेट टू कंबसन, कंप्रेशन के बाद यहाँ पे कंबसन भी हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग हाँ कंप्रेशन और कंबसन में अप्रोक्स 2000 डिग्री सेल्सियस, कंबसन में 2000 डिग्री सेल्सियस तक इतनी इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, जनरेट होता है। देन मूव टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज नोन एज एक्सपेंशन स्टेज। एक्सपेंशन में क्या होता है, जब यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हुआ, इसका बर्निंग एयर फ्यूल जो मिक्सचर है, जब हम लोग स्पार्क प्लग से उसको हम लोग क्या किए इग्नाइट कर दिए तो बर्निंग स्टार्ट हो गया। बर्निंग में जो हमारा वाल्व है यहाँ पे देखेंगे दोनों स्टेप में, स्टेप बी दैट इज कंप्रेशन स्टेज एंड स्टेप सी दैट इज एक्सपेंशन स्ट्रोक द स्टेज। ठीक है, तो दोनों स्टेज में हम लोग का इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज है। दो पोजीशन में क्या होगा, क्लोज होगा। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी डिस्कस किए थे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, यहां से हम लोग को पावर मिलती है। कैसे पावर मिली, अब बम्बार्डमेंट हो गया, बर्निंग हो गया, बर्निंग होने के बाद ये क्या करेगा, अचानक से एक स्टेट पे ये इसको तेजी से एक्सपेंड करेगा। अब ये टीडीसी पे पहुंच चुका था, टीडीसी टू बीडीसी इसको लाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में ये अब एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 to 4, यहाँ पे अब हाई प्रेशर तक हम पहुंच चुके थे। यहाँ पे देखिए प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था 2 to 3 में एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। जब यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रोक पहुंचे तो ये अब एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 to 4 स्ट्रोक में स्टेज में प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है ड्रास्टिकली एंड हमारा जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है। ये पावर थ्रू द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड ये चला जाता है क्रैंक शाफ्ट पे, और क्रैंक शाफ्ट की सहायता से ये चला जाता है इंजन साइड, इंजन शाफ्ट पे। और इंजन शाफ्ट क्या करता है, फिर हम लोग का जो डिजायर होता है इधर इंजन या जो व्हीकल चलाना होता है उसको वो पावर सप्लाई करता है। एंड लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या है, अब जो यहाँ पे बर्न गैसेस हैं, अब यहाँ पे एक्सपेंशन हो चुका है। एक्सपेंशन कहाँ आ गया, हम बीडीसी पे आ गए। अब हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे बीडीसी में इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। जब हम लोग बीडीसी पे आ गए तो क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व के ओपन होते ही अब ये क्या होगा, पिस्टन का मूवमेंट एरो बनाए हुए हैं, पिस्टन का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जो बर्न्ड एयर होते हैं, जो बर्न्ड एयर होते हैं उसको अब ये बाहर करता है टू द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व के साथ जो इसमें बर्न्ड एयर है, बर्न्ड एयर अब ये कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। और बाहर जाता है तो ये धीरे कहाँ पहुंच जाते हैं, टीडीसी में। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत ये भी हो जाती है, जब टीडीसी पहुंचता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम है तो पूरे के पूरे बर्न जो एयर है वो बाहर नहीं जा पाते हैं। उसके वजह से कुछ ड्रॉबैक होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ दोज हु वाज ठीक है, यहाँ से 4 to 1 हम लोग यहाँ पे आ गए, 4 to 1 एंड देन अगेन 1 to 0। उसके बाद फिर ये स्टेप अगेन शुरू होता है। ठीक है, तो यही होता है, ये स्टेप बाय स्टेप है। वहां पे एक स्टेप पे बहुत तेजी से ये चारों स्ट्रोक होती रहते हैं। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। ठीक है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर में हैं, मैकेनिकल इंजीनियर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को एटलीस्ट ये नॉलेज होना ही चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीडीसी टू बीडीसी कब होगा, कौन से स्टेप में पावर मिल रहा है, कहाँ कंबसन हो रहा है, एग्जॉस्ट है कहाँ पे, कहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो
बच्चे जिनको लिखना है तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा उनको बता दें क्या लिखना है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालेंगे सक्शन और इनटेक स्ट्रोक। ठीक है, डायग्राम आप लोग के सामने है, डायग्राम देखते रहेंगे और उसके बाद लिखते रहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज। तो सक्शन और इनटेक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, 0 to 1, 0 to 1 सक्शन स्ट्रोक, यहाँ ध्यान रखेंगे 0 to 1 सक्शन स्ट्रोक। यहाँ क्या हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक 0 to 1 स्टार्ट व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप डेड सेंटर। पिस्टन कहाँ पे हमारा, टॉप डेड सेंटर से अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर एंड अबाउट टू मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे है ये डीडीसी पे और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने ही वाला है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने ही वाला है, तो क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। तो लाइन बाय लाइन लिखेंगे सक्शन स्ट्रोक 0 to 1 स्टार्ट व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप डेड सेंटर दैट इज नोन एज टीडीसी एंड अबाउट टू मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगला स्टार बना लिखेंगे ड्यू टू द सक्शन क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, पिस्टन मूव करेगा, तो लिख ले फिर समझते हैं। ड्यू टू द सक्शन क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ द piston toward BDC, the charge consists of fuel air mixture is drawn into the cylinder। इतना लाइन लिख लिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, DDC टू BDC के आने के लिए अब ये चार्ज जो इसके अंदर है एयर फ्यूल मिक्सचर का वो भी सब हो जाएगा। ठीक है, आगे कंप्रेशन स्ट्रोक हेडिंग डालेंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक में हम लोग क्या क्या देखे हैं, ये उन बच्चों के लिए जो लिखना चाह रहे हैं। द चार्ज टेकन इनटू द सिलेंडर, अब क्या हो गया, अब ये बीडीसी पे आ गया। अब इसके अंदर क्या है, चार्ज, चार्ज क्या है, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। द चार्ज टेकन इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, लिखते रहेंगे सक्शन स्ट्रोक इज कंप्रेस्ड बाय द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन 1 and 2। यहाँ प्रोसेस में 1 से 2 देखेंगे, 1 से 2 में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कैसे कर रहा है, हम लोग बीडीसी से टीडीसी पे जा रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, 1 to 2 वॉल्यूम यहाँ पे थे हम लोग, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो बीडीसी से बीडीसी पे आपकी जो चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे। अगला पॉइंट क्या हो गया, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर इन क्लोज पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या है, क्लोज पोजीशन पे हैं इस स्ट्रोक में। अगला पॉइंट फिर लिखेंगे एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द मिक्सचर इज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग लोकेटेड ऑन द सिलेंडर हेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग टीडीसी पहुंच जाएंगे तो मिक्सचर क्या होगा, इग्नाइट होगा विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के सहायता से हम लोग इसको इग्नाइट कर दिए, यानी कंप्रेशन जैसे ही खत्म हुआ, टीडीसी पहुंचा, तुरंत उसी इंस्टेंट पे स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है और कंबशन स्टार्ट हो जाता है। उस कंबशन में हमको क्या मिलता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे। इन द आइडियल इंजन इट इज एज्यूम दैट बर्निंग टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, एक इसी इंस्टेंट पे होगा। व्हेन द पिस्टन is at the top dead center and hence the burning process can be approximated as the 2000 degree Celsius। Addition of यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम 2 to 3, यहाँ पे 2 to 3 ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पे हम लोग हीट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या था हमारा, एक्सपेंशन, या इसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो जो लिखना चाहिए लिख सकते हैं एक लाइन में, द हाई प्रेशर ऑफ द बर्न गैसेस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग प्रेशर साइड इसको हम लोग क्या किए हैं, पूरा एक्सपेंड सॉरी कंप्रेस कर चुके हैं। अब ये क्या करेगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो हम क्या करेगा, पावर देगा। ठीक है, और पावर को कहाँ अप्लाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक शाफ्ट। इसको हम लोग इंजन के शाफ्ट को ट्रांसफर करेंगे। तो लिख लेंगे द हाई प्रेशर ऑफ द बर्न गैसेस फोर्सेस द पिस्टन
टुवर्ड द बीडीसी, ठीक है, क्या करेगा ये बीडीसी पे इसको एक्सपेंड करेगा, सॉरी नीचे बीडीसी पे इसको एक्सपेंड करेगा। बीडीसी पे था पहले कंप्रेसर में, ये बीडीसी पे आ रहा है और यहाँ पे क्या करेगा बीडीसी पे एक्सपेंड हो गया है। और ये प्रोसेस कौन सा है 3 to 4 प्रोसेस में हम देख रहे हैं ड्रास्टिकली प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। 3 to 4 स्ट्रेस ये क्या है एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक। बोथ द वॉल्व्स आर इन क्लोज पोजीशन और यहाँ पे जो वॉल्व होगा दोनों क्लोज होगा एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में भी दोनों वॉल्व क्लोज होगा। लास्ट जो लिखना चाहें लास्ट स्टेज क्या था हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। एग्जॉस्ट में क्या होता है एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन, ठीक है। जैसे ही हम लोग बीडीसी पहुंचे उसी स्टेज पे क्या होगा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने का मतलब क्या है जो बर्न एयर है, ठीक है, वो अब एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर में हम लोग इसको रिलीज करेंगे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। लिखते हैं एट द एंड ऑफ द एक्सपेंसिव स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एंड द इनलेट वाल्व रिमेन एट द क्लोज, ठीक है। और इनलेट वाल्व क्या होगा क्लोज होगा। ये कौन सा पॉइंट है जैसे ही क्लोज होगा ये 5 to 0 पॉइंट पे अगेन हम लोग आ गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग के इंजन में चलता रहता है सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द फुल स्ट्रोक कंप्रेस इग्निटेड इंजन, ठीक है। यानी इसको हम डीजल इंजन के नाम से जानते हैं। अभी देखे हम लोग एडोल्फ रुडोल्फ डीजल ने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।